Hello everyone, welcome to your competitive knowledge everywhere. So in this video, we are going to discuss about the features of Indian Constitution. So Indian Constitution का क्या-क्या features है and what are the characteristic of federalism, okay, and what is the meaning of federalism, ये सारी चीजें हम discuss करेंगे, ठीक है? And so that to make our UPSC journey very easy, so polity, we will go through this is the first chapter only. So first feature is it is the lengthiest written constitution. Okay, so it has 22 parts, 12 schedules, and more than four 400 articles. Okay, so remember this is very much important because these are the only notes which you can go through while giving your UPSC examinations. Okay, so lengthiest written constitution, 22 parts, 12 schedules, and more than 400 articles is there. Inspiration was taken from USA and UK, etc. Okay, mixture of rigidity and flexibility. ओके, रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें चेंज की जा सकती है, कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं की जा सकती है। चेंज करने को अमेंडमेंट कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है? एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी दोनों को यूज़ करके हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो एक ये स्पेशल मेजॉरिटी एंड जो सिंपल मेजॉरिटी है, and this is also very much different, and I will explain this in later class. So now fourth one is federal system with unity bias. मतलब ये federal system है, okay, it is of federal system, मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है federal system में belong करता है, and unitary bias, मतलब एक पार्टी रूल करती है पूरे इंडिया को, so whichever is the ruling party. Now parliamentary form of the government है, यहाँ पे parliamentary form of the government है, that means the highest power is in the hands of the PM, Prime Minister. So the synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. So यहाँ पे क्या है कि parliamentary sovereignty है और judicial supremacy है. That means judiciary is also supreme. It can also decide and check on the parliament and उनके जो भी फैसला है और जो भी चीज़ें हैं उसको जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है. सो जुडिशियल सुप्रीमेसी is there, sovereignty is also there, that means it is independent also, parliament also acts as independently, and it is integrated and independent judiciary. It has integrated and independent judiciary. SC HE subordinate courts is also there. That means this is the Supreme Court, and High Court subordinate to Supreme Court is also there. Integrated judiciary है यहाँ पे, ठीक है? Integrated and independent judiciary, like High Court है, Civil Courts है, and we have Supreme Court. Now fundamental rights, how many fundamental rights? Fundamental rights के जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 12 to 35 है. रिमेंबर दैट, फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल नंबर 12 to 35 में बिलोंग करते हैं, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से काम करेगा, या फिर हमारा जो भी राइट्स है, या फिर हम हमारा जो भी ड्यूटीज़ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वट एवर ड्यूटीज़ वी हैव टुवर्ड्स द नेशन, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में written है, and it starts from article 36 to 51. Okay, remember article 12 to 35 is fundamental rights, and article 36 to 51 is your directive principles of state policy. Number 10, fundamental duties. Fundamental duties starts from article 51A. So 51A जो है वो amendment किया गया था. ये जो ए नहीं था पहले, तो इसमें वो अमेंडमेंट करके 51A ए के अंदर इसको डाला गया था. फंडामेंटल ड्यूटीज इज ऑल्सो प्रेजेंट. अगर फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना ज़रूरी है. ओके, नंबर 11, इट हैज़ अ सेकुलर स्टेट. ओके, इट इज़ अ सेकुलर स्टेट, मतलब यहाँ पे कोई भी रिलीजन सुप्रीमेसी नहीं है, और वी गिव इक्वल इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द रिलीजन्स इज देयर. ओके, तो ये एक सेकुलर स्टेट है विच इज़ ऑल्सो गिवन, मतलब आर्टिकल 25 to 30 it discusses about these things only, की सेकुलर स्टेट है. नाउ इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज ऑल्सो देयर. दैट मीन्स जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है एट द एज ऑफ 18 years he can cast the vote. So Indian, you have universal adult franchisee. Then single citizenship. Okay, that means India is a single citizenship. यहाँ पे अगर आपका citizenship है तो बाहर में नहीं हो सकता है, दो जगह आप citizenship नहीं
ले सकते हो। अगर आप कहीं और जगह कोई सेटल हो रहा है तो इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ 14th is your fund independent bodies, that is CAG, UPSC, etc. So UPSC है, CAG है, these are all independent bodies is there in this constitution also. Okay, now sorry, it is in the features of constitution. Now emergency provinces is also there, which comes under part 18 of, ठीक है, 22 पार्ट्स में जो 18th पार्ट है that comes under your emergency provinces. Now the 16th is point is your three tier of the government is also there. That is, first is the central government, second the state government, and the third is the जो पंचायती राज है हमारे villages में, that form of the government. So three forms of the government is also there. Right. Now, characteristic of federalism. What is the characteristic of federalism? Two or more levels or tiers of the government, generally federal, central and the provisional state governments. तो वही चीज हमने डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, टू फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है. ओके, टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो देयर, दैट इज योर सेंट्रल एंड प्रोविजनल. प्रोविजनल मतलब स्टेट गवर्नमेंट. ओके, नाउ ईच टायर हैज ओन jurisdiction इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से भी काम करती है. जैसे कि उसका अलग है, ईच टायर दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका ज्यूरिडिक्शन मतलब उसके अंडर में जितने भी स्पेसिफिक मैटर्स है, लाइक लेजिस्लेशन, कुछ भी रूल बनाना हो, टैक्सेशन हो, कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो ये सारी चीज़ें कभी कभार डिफरेंट भी होती है ऑन द बेसिस ऑन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. नंबर थर्ड पॉइंट इज दैट द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. ओके, सो जो जितना भी एग्जिस्टेंस है, ओके, एंड अथॉरिटी है ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितना लिखा है उतना ही अथॉरिटी मिलेगा, उससे ना ज़्यादा ना कम. ठीक है. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली changed by one level of the government. Such changes requires the consent of both the levels of the government. The fundamental provisions of the constitution, like provinces of the constitution, that means you cannot change the constitution. If you want to make some amendments, that is possible. मतलब अगर हमें कुछ संशोधन करना है कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते. अगर कुछ भी लॉ चेंज करना भी है तो भी ये यूनिलैटरली मतलब कोई भी एक पार्टी नहीं डिसाइड कर सकता, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता. इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति की ज़रूरत पड़ेगी. Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government. So court के पास ये power है कि वो interpret करे constitution ने जो भी दिया हुआ है या फिर मतलब constitution में जो भी बताया गया है उस laws को अच्छी तरह से follow हुआ है कि नहीं, वो सब देखा, and plus उसको interpret करना कि उसमें क्या actually बोला गया है और powers क्या क्या है दोनों government के पास. ठीक है. तो उस चीज़ को बताने का भी दायित्व कौन, मतलब उसका जो responsibility है वो लेता है हमारा judiciary. Okay. Now, resources of revenue for each level of the governments are clearly specified to ensure its financial authority. Anatomy, sorry. So, जो भी जितना भी state government and central government है, कितन सबके पास कितना कितना पैसा आएगा वो भी it is ensured in, it is revenue of sources जितना भी है वो ensure किया जाता है by the, मतलब it is specified actually. ओके, बाय एंड टू इंश्योर इज फाइनेंशियल एनाटॉमी, ताकि फाइनेंशियल एनाटॉमी किसी भी स्टेट का बिगड़े ना, और इसीलिए वो भी फिक्स्ड होता है. The federal system has dual objectives. जो federal system of the state है, it has dual objective. First is that to safeguard and promote unity of the country. ठीक है. तो to safeguard, फर्स्ट सेफगार्ड करना, ठीक है, और प्रमोट यूनिटी, मतलब यूनिटी ताकि बनाए रखे, ये देखना सब के अंदर, ये डिसाइड करता है फेडरल सिस्टम. ओके, फर्स्ट. सेकेंड थिंग, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. मतलब रीजनल डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वास्ट कल्चर्स, वास्ट डाइवर्सिटी. आप यहाँ से थोड़ा बहुत दूर जाओ तो आपका पूरी तरीके से एक्सेंट चेंज हो जाता है बोलने का, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, खाने पीने का ढंग चेंज हो जाता है. तो इतने सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना ही फेडरल सिस्टम है. ओके, फेडरल सिस्टम सेज दैट. ठीक है. दूसरा है टू सेव गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी. तो सेव करना इंसानों को एंड उनके यूनिटी को बनाए रखना, दैट इज ऑल्सो ऑन द फेडरल सिस्टम. सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज फेडरल सिस्टम, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड देन फेडरल सिस्टम इन इंडिया.
we will do this one. So unitary features, and you have, this is quasi federal type. Actually India का जो federalism है वो quasi federal type है. So what does this mean? Let's see. Unitary features जो है and federal features. Unitary features means residuary power with the central government. यूनिटरी फीचर्स जिस भी देश का है, जिस भी देश में यूनिटरी फीचर्स चलता है, वहाँ पे क्या है कि जो एक ही पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा सब कुछ, ठीक है. वेर एज इन फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स. नाउ हियर अ स्टेट बाउंड्री ऑल्टरेशन विदाउट देयर कंसेंट, मतलब स्टेट का जो भी डिसाइड करना है विदाउट उनसे पूछे बिना भी वो डिसाइड कर सकता है. वेर एज इन केस ऑफ फेडरल फीचर्स, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर. सो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी सुप्रीम नहीं है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है यू हैव टू फॉलो, ठीक है. नाउ सिंगल सिटीजनशिप इज देयर इन यूनिटरी फीचर्स. ओके, दैट मीन्स इट दिस फेडरलिज्म इन इंडिया जो क्वासी फेडरल टाइप है ये यूनिटरी फीचर्स को भी अडॉप्ट करता है एज वेल एज द फेडरल फीचर्स ऑल्सो. ओके, नाउ सिंगल सिटीजनशिप. Okay, whereas here in federal features you have division of powers. सेवेंथ शेड्यूल में बताया गया है कि डिविजन ऑफ पावर्स इज देयर. ऑल इंडिया सर्विसेज कम्स अंडर यूनिटरी फीचर्स. दैट मीन्स ये जितने भी पोर्शन है दैट कम्स इन यूनिटरी फीचर्स. ओके ओके, वेरस यहाँ पे ये जो फेडरल फीचर्स है ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है. जो स्टेट बाउंड्री ऑल्टरेशन विदाउट देयर कंसर्न, मतलब स्टेट बाउंड्री जो भी बाउंड्री के ऊपर जितना भी डिसाइड करना है वो डिसाइड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट पूछे, स्टेट से पूछे बिना. बाकी सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, ठीक है. ऑल इंडिया सर्विसेज विल कम अंडर यूनिटरी फीचर्स. पोस्ट ऑफ गवर्नर्स और द स्टेट गवर्नर्स, ये सारे पोस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर यूनिटरी फीचर्स. इंटीग्रेटेड ऑडिट ऑफ CAG, okay, comes under unitary features. Emergency provinces, appointment of high court judges by president, article 1, that is the union of state, ये सारे चीज़ें इस unitary features में हमारे आ जाते हैं. okay, emergency provinces is also there. देन जो डिविजन ऑफ पावर्स है फेडरल सिस्टम से लाया गया है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. ओके, फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. जुडिशरी कैन डिसाइड whether the government is taking good decisions or not. Then bicameralization is there. That means राज्य सभा है, लोक सभा है, दो टाइप के सभा से यहाँ पे, ठीक है. More features of the unitary features reflect till towards central government. Unitary features जो reflect करता है ज़्यादातर वो tilt करता है central government के through. Whereas, however, the SC in SR Bomani case, that means, however, in SR Bomani case जो 1994 में held किया था, held that federalism is the basic structure or the part of the constitution. यहाँ पे ये जो केस है SR बोमनी केस वो 1994 में हुआ था, और इस केस का जो भी निष्कर्ष निकाला गया था इस केस में ये बताया गया था इस केस के थ्रू कि ये जो भी जो जितना भी फेडरल बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड. ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. Okay, however, held the federalism in basic structure and a part of Indian constitution. Okay, so this much I have done about the federalism. We will go to key doctrine in Indian polity in the next chapter.